हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा 50 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्बल एबिलिटी पार्ट ऑफ द सीईटी। अब यहाँ पे मैं कवर करूंगा प्राइमरीली ग्रामर एंड वोकैबुलरी। सो ऑल ऑफ यू हु आर फेसिंग इश्यूज विद ग्रामर एंड वोकैबुलरी डू गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मे बी वोकैबुलरी इन अ बेटर मैनर, ग्रामर इन अ बेटर मैनर, या फिर एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए ओवर द कमिंग कपल ऑफ वीक्स सो दैट यू कैन बेटर योर चांसेस ऑफ क्रैकिंग द सीईटी। So let's start with the first question. Before that, one small announcement. The CET crash course is now available for 2,999 rupees only. This includes the recordings of all the sessions that I have conducted, plus one strategy session that is a part of this program, and also access to area tests, sectional tests and full length mocks. अगर mocks, tests और sectional tests, area tests नहीं चाहिए तो you can only go for the videos and the strategy session, the pricing for which is 1,999 rupees. You will have to use certain coupon codes जिनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. डू हैव अ लुक एट इट एंड ट्राई इट आउट ऑन योर ओन इफ यू विश टू क्रैक द सीईटी दिस ईयर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. The first question here will be an idiomatic expression or a proverb that has been given and you have to figure out कौन सा वाला जो है वो meaning है इस idiom या proverb का. Now it is advised that you pause the video, try it out on your own and then have a look at the solution that will follow. So let's look at the word that has been or the proverb that has been given to us here. To turn the other cheek. अब इसका क्या मीनिंग हो सकता है? So generally इसमें क्या होता है? If someone let's say slaps you or hits you on one cheek, what you do is instead of retaliating or fighting with them, you turn the other cheek. You are like तुम में कितनी हिम्मत है हम देख लेते हैं. We will not retaliate, we will not fight violence with violence. ठीक है? तो यहाँ पे the correct answer is going to be to respond to violence with non-violence. Violence with violence हमें नहीं करना है. Violence को non-violence से जवाब देना है. So that is the meaning of this idiom that is there. To sulk and suffer is basically just bearing whatever has happened. To be indifferent to peace overtures is another thing altogether. Indifference नहीं है यहाँ पे and to take revenge भी नहीं है. This is basically what it means. Let's move on to the next question. अब यहाँ पे you have to figure out which part of the sentence has a grammatical or idiomatic error. तो देख लेना एक बार, try it out and then have a look at the solution. Now let's read this line first of all. This book is a primer for managers who have no formal training or a refresher for experienced managers. Now a lot of people think that the answer to this question is no error, but ऐसा नहीं है. यहाँ पे if you are reading it ना, if you are someone who has read a lot of English, you will basically see that something is off, but you can't put a finger to it. This book is a primer for managers who have no formal training or a refresher for experienced managers. अब यहाँ पे issue क्या हो रहा है पता है? अब यहाँ पे this book is a primer for all the managers और ये आगे पूरा describe कर दिया गया है. So this book is a primer for managers, ये वाला part है. This book is also a refresher for experienced managers. तो जैसे ही मैं और बोलता हूँ, और के बाद जो start होता है, that basically has to talk about this book. So can I say this book a refresher for experienced managers? I can't say. I have to say this book is a primer for someone or is a refresher for experienced managers. So the correct answer here is this part of the statement D. That is basically the answer. So the correct answer is option D or part B of the sentence that is there. तो just एक ध्यान में रख लेना, और के बाद जो भी clause आएगा that clause has to be in the same sense as the clause was before or. तो दो चीज़ों के बारे में हम बात करें, या तो ये या तो ये. अब दोनों के बीच में अगर और लिख दिया so this book does something or does something, तो वो वहाँ पे verb repeat होना जरूरी है, because we are talking about two different sets of people, one managers and second experienced managers. Second वाला part देख लेते हैं. Let's look at the next question. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एक चीज़ दी हुई है, आइटैलिक्स में दी हुई है. यू हैव टू फिगर आउट कि कुछ सब्सटीट्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट मार्क ऑप्शन ई और नो इंप्रूवमेंट एज योर आंसर. अब यहाँ पे लेट्स लुक एट दिस. The orphans have been clamoring for nutritious food from the past 2 weeks. अब clamoring क्या होता है? Basically asking कि requesting कि मुझे दे दो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, let's say you can say. वैसे हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में. They want nutritious food from the last 2 weeks. So क्या करना चाहिए यहाँ पे? The orphans have been clamoring for nutritious food. अब italics में क्या दिया है? From the past 2 weeks. Since the past 2 weeks is the first option. For the past 2 weeks, for past, from, since past and so on and so forth. अब फ्रॉम दी पास्ट 2 वीक्स अगर बोल रहे हैं तो फ्रॉम के बाद टू होना चाहिए. फ्रॉम 8 AM to 10 PM ऐसे हम बोलते हैं.
वी कांट से फ्रॉम कर रहे हैं और छोड़ दिया, वहाँ पे ऐसे नहीं होगा. सो वी कांट से फ्रॉम द पास्ट 2 वीक्स. सो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम टू, ये वाला क्लॉज नहीं है. वी वॉन्ट टू से दैट 2 हफ्ते से दीज पीपल हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड. सो उसको हम कैसे इंग्लिश में बताएंगे, फ्रॉम द पास्ट नहीं बोलेंगे, वी आर बेसिकली गोइंग टू से फॉर द पास्ट 2 वीक्स. सो 2 वीक्स से, दैट इज बेसिकली फॉर द पास्ट 2 वीक्स. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. दे हैव बीन क्लैमरिंग फॉर न्यूट्रिशियस फूड. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, फॉर द पास्ट 2 वीक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. I became alert because I dash trouble around me. अब यहाँ पे if you look at it, it's a fairly straightforward question, तो बहुत easily इसका आंसर आ जाना चाहिए. अब यहाँ पे fill in the blanks है, so look at the answer now. तो क्या होता है ट्रबल, हम लोग क्या करते हैं, हम जनरली सेंस करते हैं ट्रबल को. सो हियर आई बिकेम अलर्ट बिकॉज आई सेंस्ड ट्रबल अराउंड मी. सो दिस इज व्हाट आई विल बेसिकली बी एबल टू डू. ट्रांसेंडेड मतलब सारी चीज़ों को पार करके हम आ गए हैं. कॉम्प्रीहेंडेड मतलब मुझे समझ में आया, बट इट इज़ नॉट कॉम्प्रीहेंडेड. कॉम्प्रीहेंशन जनरली मीन्स कि सारे सेंसर्स यूज करके या सब कुछ करके माइंड लगा के फिर मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को. सेंस्ड ऑन द अदर हैंड इज मुझे सेंसेशन आ रहा है दैट समथिंग हैपेंस. इट्स लाइक स्पाइडी सेंस, जो हेयर ऑन योर हैंड ऐसे स्टैंड्स अप सडनली, तो यू कैन सेंस समथिंग इज गोइंग टू हैपन. ठीक है, लेट्स लुक एट दी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे अपने को फिर से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. वी हैव टू फाइंड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस एज आवर आंसर. इवन अ डैश ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री, ये दिया हुआ है. अब किस टाइप का ग्लांस होगा जो रिवील द मिस्ट्री करेगा. द पॉइंट क्या होता है, ग्लांस होता है कि मैंने फट से देख लिया और वापस अपनी जगह पे देख लिया, तो दैट इज बेसिकली अ ग्लांस. तो ग्लांस के सामने क्या एडजेक्टिव आएगा, व्हाट काइंड ऑफ ग्लांस आर वी टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कर्सरी ग्लांस. कर्सरी मतलब जस्ट देखा और वापस अनदेखा कर दिया. उतना भी अगर मैं करूंगा, एकदम सिंपल तरीके से भी अगर मैं देखूंगा, तो भी मिस्ट्री रिवील हो जाएगी. So the answer to this question again, it is mostly idiomatic usage. cursory glance होता है, critical glance नहीं होता. critical glance मतलब I am looking at something with the view of critiquing it. critiquing it मतलब मैं उसमें सही क्या है, गलत क्या है, क्या चीज़ें हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ. that is basically a critical glance if I am talking about it. crude glance is basically something जो बहुत ही crude होता है, rough होता है, it's not smooth, that is crude. curious मतलब ऐसे मैंने curiosity के साथ देखा, but mystery reveal करने के लिए मुझे curious glance करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड एक्सपोजिटरी का मीनिंग है एक्सपोजिशन जो करते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट, कि मुझे कुछ अनवील करना है, रिवील करना है, वैसे मैं देख रहा हूं. बट नहीं, मैं कर्सरी ग्लांस कर रहा हूं, मैं बहुत ही आराम से देख रहा हूं और फिर भी मुझे मिस्ट्री समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी. अब यहाँ पे विच वन कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस दैट हैज बीन आस्क्ड हियर. डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, कि कॉमनली होता है, नॉर्मली होता है, बट अब ये कुछ हटके हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं. एनोमली, यूनानिमिटी, हेट्रोजेनिटी, एनोनिमिटी एंड कॉन्फॉर्मिटी. अब यहाँ पे एनोमली का मतलब क्या है, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड हैव हर्ड दिस टर्म कॉल्ड एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. जनरली क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे चीज़ें छोटी होती जाती हैं. बट वाटर के केस में 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक वॉल्यूम कम होने के जगह पे बढ़ता है, उसको बोलते हैं एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर. अब एनोमली, नॉर्मल के आगे ए लगा जाए तो इट इज सेइंग नॉट नॉर्मल और इट इज डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, ये सही बैठेगा यहाँ पे. यूनानिमिटी ऑन द अदर हैंड इज सब एक साथ एकजुट कुछ चीज़ बोल रहे हैं, तो यूनानिमिटी है, यूनानिमस डिसीजन लिया जजेस ने मिलके, मेक सेंस. हेट्रोजेनिटी मीनिंग कितना डिफरेंशिएटेड है, तो एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारा हेट्रोजेनिसिटी होता है या हेट्रोजिनिटी मिलती है, विच मीन्स दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल दैट एग्जिस्ट. एनोनिमिटी ऑन द अदर हैंड, जिसका कुछ नाम नहीं है, दैट इज एनोनिमिटी. मैं अपनी तरफ से कुछ एक चीज़ बताऊंगा बट एनोनिमस रखना है मुझे, मैं एक एनोनिमस टिप दूंगा, दैट इज व्हाट इट मीन्स. एंड कॉन्फॉर्मिटी मतलब कॉन्फॉर्म कर रहे हैं, आई एम बेसिकली अग्रीइंग टू ऑल द रूल्स, अडहियरिंग टू ऑल द रूल्स, वो होता है कॉन्फॉर्मिटी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज अनोमली. दैट इज बेसिकली डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड दैट वी हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पे ग्रामेटिकल या इडियोमेटिक एरर मुझे स्पॉट करना है, सो लेट्स सी. Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of others as much as his own. अब यहाँ पे भी बहुत लोगों को लगेगा कि नो एरर होना चाहिए, बट द आंसर हियर इज नॉट ई. The answer here is option D और basically part D of this sentence. अब क्यों मुझे यहाँ पे D दिख रहा है? Because if you look at it, Mahatma Gandhi taught us that one should respect the religions of others as much as his own. अब taught us अगर है तो their own होना चाहिए, क्योंकि हमें बताया गया है. अब his की जरूरत नहीं है, हर भी तो हो सकता है. We don't know whether Mahatma Gandhi had taught only men or only women, ये मुझे नहीं पता. तो अगर मुझे बोला गया था कि महात्मा गांधी taught him that he should respect the religions of others as much as his own, तो परफेक्ट बैठ था. बट यहाँ पे बोल रहे हैं us one,
तो देयर ओन या हिज और हर होना चाहिए था, सिर्फ हिज नहीं लिख सकते यहाँ पे. दैट इज वाई द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी. डी इज द पार्ट जहाँ पे एरर है इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द वन वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर दिस फ्रेज. सो एक बार देख लेना, देन लुक एट द आंसर. टाइम आफ्टर ट्वाइलाइट एंड बिफोर नाइट. अब ट्वाइलाइट क्या होता है? ट्वाइलाइट मतलब दो लाइट्स के बीच में, इन अ वे. सो दिन खत्म हो रहा है, रात शुरू हो रही है, शाम शुरू हो रही है रादर, एंड नाइट. इसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? दैट एग्जैक्ट टाइम दैट इज देयर. सो मॉर्निंग को पता है, बोलते हैं क्रैक ऑफ डॉन. तो सुबह को बोलते हैं DAWN, दैट इज डॉन, दैट इज मॉर्निंग. डस्क इज बेसिकली इन द इवनिंग, जब लाइट से डार्कनेस शुरू होता है. सो द टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट एग्जैक्ट पीरियड जहाँ पे सनसेट के आसपास यू कैन से ट्वाइलाइट जो होता है, जहाँ पे सन और मून दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर. यहाँ पे हम बोलेंगे इसको डस्क. सो दैट इज व्हाट इट मीन्स. डॉन इज द मॉर्निंग वाला टाइम, जहाँ पे नाइट खत्म हो रही है और दिन शुरू है, उसको बोलते हैं हम डॉन. इवनिंग इज इवनिंग, जनरली मतलब आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, तो वो वाला पार्ट है, उसको हम जनरली इवनिंग बोलते हैं. एंड इन टर्म्स ऑफ एक्लिप्स, एक्लिप्स इज जब या तो मून, सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा, या फिर ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव अ लूनर एक्लिप्स जहाँ पे द मून विल बी हिडन बिहाइंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये होता है, ठीक है. एंड आफ्टरनून इज ऑफ कोर्स आफ्टर नून. सो 12 नून के बाद के टाइम को आफ्टरनून बोलते हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज डस्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. As a witness of the court, you have to be dash in your statement. तो witness हो court के, मतलब you are basically trying to say something in terms of something that has happened. तो court में बुलाया है and you have to give your statement, right? तो क्या statement देना चाहिए? Accurate, pointed, short, prompt, resistant. अब इसमें से काफ़ी सारे आंसर्स ना ठीक लग सकते हैं. Accurate मतलब सही सही बताओ कि क्या हुआ था करके, ठीक है. पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब एकदम पॉइंटेडली बताओ मेरे को, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट प्रिसाइसली बताओ मुझे. शॉर्ट मतलब कम से कम वर्ड्स में मुझे बताओ, एकदम इन प्रिसाइसली मुझे बताओ, इन शॉर्ट मुझे बताओ कि भाई क्या हुआ था. प्रॉम्प्ट जल्दी बताओ कि क्या हुआ था. या फिर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट तो नहीं हो सकता. रेजिस्टेंट इज आई एम नॉट विलिंग टू डू समथिंग, उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है. तो रेजिस्टेंट तो मेरा आंसर नहीं है. बट यहाँ पे अगर एक कोर्ट आपसे एक स्टेटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट आर दे एक्सपेक्टिंग? दे आर एक्सपेक्टिंग एक्यूरेट स्टेटमेंट्स. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि जल्दी जल्दी बताओ या फिर एक पॉइंट ऑन पॉइंट टू पॉइंट 3 करके बताओ, वो सब नहीं बोल रहे हैं. मुझे सही सही बताओ क्या होता. तो एक्यूरेसी इज बेसिकली माई नीड हियर. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट हियर हैज टू बी एक्यूरेट. सो ऑप्शन ए, एक्यूरेट, इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देख लेते हैं. एम्बेलिश, बट अब यहाँ पे क्या करना है? यू हैव टू फिगर आउट द वन विच इज नियरेस्ट टू द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. सो ऑपोजिट करना है, तो रूल्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना. अगर नहीं पढ़ोगे तो फ्री में मार्क्स चले जाएंगे एंड यू विल लूज आउट ऑन रैंडम मार्क्स, ठीक है. अब एम्बेलिश क्या होता है? एम्बेलिश को अगर सोचना है तो समझ लो कि बेल्स, विसल्स, ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं हम लोग कहाँ लगाते हैं. तो बेल्स कहाँ पे लगाते हैं हम जनरली? अब हम टेबल पे तो बेल को नहीं रखेंगे. हम लोगों ने कुछ एक ट्री बनाया या कुछ डेकोरेशन किया, कुछ भी अगर बनाया तो उसके ऊपर एक बेल डाल देंगे, राइट. सो उसको हम बोलते हैं एम्बेलिश. एम्बेलिश का मीनिंग होता है डेकोरेट किया, अडॉर्न किया कोई चीज़ को. दैट इज बेसिकली एम्बेलिश. अब यहाँ पे मुझे निकालना है ऑपोजिट वर्ड. अ लॉट ऑफ पीपल विल से अडॉर्न, बट दैट इज नॉट द आंसर, क्योंकि मुझे चाहिए ऑपोजिट, ठीक है. सेकेंड थिंग इज डिसफिगर. डिसफिगर का मतलब क्या है? कुछ अच्छी चीज थी या जो भी चीज दिख रही थी उसको मैंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ठीक है. जनरली पीपल टॉक अबाउट सम फेस जो डिसफिगर हो गया है बिकॉज ऑफ सम इलनेस या बिकॉज ऑफ सम अटैक और समथिंग. तो ऐसे कुछ हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्कार्स, ऐसे कुछ हो सकता है. तो डिसफिगर कर दिया मैंने. डिसआर्म मतलब कोई तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आया था, तुमने उसके हाथ से स्वॉर्ड या नाइफ या जो भी गन था उसको तुमने निकाल दिया, तो वो डिसआर्म, अब निहत्ता हो गया है जो बोलते हैं हिंदी में, ठीक है. गार्निश, गार्निश जनरली फूड के ऊपर करते हैं. डेकोरेशन जैसा बोल सकते हैं उसको, बट दैट इज जनरली ट्रू इन केस ऑफ फूड, बट अगेन इट्स अ सिनोनिम, एंटोनिम नहीं बोल सकते. इट इज क्लोजर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड दैन बीइंग द ऑपोजिट. एंड फेस्टून, फेस्टून इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर. फेस्टून क्या होता है मुझे बताना एक बार. उसके अंदर एक छोटा सा रूट है, फेस्ट करके एक दिया हुआ है. सो फेस्टिवल, फेस्टिविटीज के साथ कुछ इसका रिलेशनशिप है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेस्टून. बट इन दिस पर्टिकुलर केस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिसफिगर. सो कोई भी चीज को अगर मैं एम्बेलिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उसकी जो उसको दिख रहा है उसको मैं और थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट डिसफिगर के अंदर जो अच्छा था उसको मैं खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके अपीयरेंस को खराब करने की कोशिश कर रहा हूँ. दैट इज डिसफिगर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट विच वन एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. तो कौन सा वाला मीनिंग बताएगा इस वर्ड का, ये बताना है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज.
फिल्च दिया हुआ है. Now all those of you who have read Harry Potter, you will know this character called Argus Filch. या मूवीज देखी होंगी तो भी पता होगा, जो वहाँ का केयर टेकर होता है या फिर गेट कीपर होता है, राइट. सो दैट इज आर्गस फिल्च. इट्स अ हेटेड कैरेक्टर. फाइन. अब आर्गस फिल्च क्या करता है? आर्गस फिल्च बेसिकली प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम स्टीलिंग स्टफ, बट एट वन पॉइंट इन टाइम ही हैड स्टोलन समथिंग. सो यहाँ पे फिल्च का मतलब है steal. So the one that expresses the meaning of the given word is steal. So when you filch something, you are basically stealing something. ये होता है. Sink basically डूब जाएगा. Submerge again डूब जाएगा. So one thing you have to understand, अगर इसमें तुक्का मार रहे हो ना तो sink और submerge का meaning पता होना चाहिए. Sink मतलब पानी के अंदर डाल दिया. That is called sink. शिप जो होता है, टाइटैनिक जो होती है वो सिंक हो गई. सबमर्ज, मैंने कोई चीज को वांटिंगली अगर डुबा दिया तो दैट इज कॉल्ड सबमर्ज. तो ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एक होता तो दूसरा भी होना चाहिए था. दैट इज व्हाट इट इज. सपोर्ट, गिव. सपोर्ट, गिव आर ऑल्सो मोर और लेस सिमिलर नेम्स दैट यू हैव. तो बचा क्या? स्टील इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर वर्ड. दैट्स व्हाई दैट विल बी माय बेट. अगर भले ही मुझे इसका मीनिंग नहीं पता हो, मीनिंग पता होगा तो इट्स ग्रेट, बट नहीं भी पता हो तो योर आंसर शुड बी अमंग ए, डी और ई वर्स्ट केस. एंड अगर उसमें भी थोड़ा कर सकते हो मैनेज तो ए शुड बी योर आंसर, राइट. और अगर मीनिंग पता होगा तो डेफिनेटली विल गेट 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट, आइटैलिसाइज्ड पार्ट एक दिया हुआ है, यू हैव टू फिगर आउट कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. तो एक बार देख लो एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी बट इवन मोर आर दे quarrelsome. अब इवन मोर आर दे quarrelsome सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो ऑप्शंस एक बार प्लग इन करके देख लेते हैं. माय नेबर्स आर एक्सट्रीमली नॉइजी बट इवन मोर दे आर quarrelsome. इवन मोर दे आर quarrelsome भी थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, बट दे आर quarrelsome इवन मोर, दे आर इवन मोर quarrelsome, इवन quarrelsome मोर आर दे. अब ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज इवन मोर आर दे quarrelsome क्या होता है? ठीक है, दे आर इवन मोर quarrelsome इज द बेटर पार्ट, राइट. सो दे आर, माई नेबर्स आर, बट दे आर, राइट, इवन मोर quarrelsome. सो माई नेबर्स आर एंड दे आर, ये पैरेलल स्ट्रक्चर बन गया. दे आर एक्सट्रीमली नॉइजी, तो नॉइजी तो हैं बट उससे भी ज्यादा इवन मोर quarrelsome. सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, यू हैव टू फिगर आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस एज योर आंसर. सो एक बार देख लेना एंड देन यू विल हैव अ लुक एट द आंसर दैट इज देयर. ठीक है. द टीचर वार्नड हिम डैश दैट टाइप ऑफ लैप्स. तो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो लैप्स बेसिकली होता है जहाँ पे देयर इज सम लैप्स इन जजमेंट. मैंने कोई एक चीज को जज करने में कुछ गड़बड़ कर दी, देन आई कॉल इट लैप्स इन जजमेंट. तो एक कुछ करना था मुझे बट आई डिड नॉट डू इट प्रॉपरली, सो दैट इज बेसिकली लैप्स. तो मैं कोई भी किसी को भी अगर वार्न करता हूँ तो किस कॉन्टेक्स्ट में मैं लोगों को वार्न करूंगा? आई विल वार्न देम अगेंस्ट डूइंग समथिंग, राइट. तुम ये करोगे तो ये मत करो, ये मुझे बोलना है. सो वार्न हिम ऑफ दैट टाइप ऑफ लैप्स थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट. वार्न हिम अगेंस्ट होना चाहिए. सो ऑफ इन टूवर्ड्स नहीं है. द आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज अगेंस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो वार्न अगेंस्ट. आई नो दैट सम पीपल माइट गेट दिस रॉन्ग, इट्स परफेक्टली ओके. एक आधा आंसर गलत हुआ तो चलेगा, बट येस दिस वॉज काइंड ऑफ अ ट्रिकी वन. अगर पता है इडियोमेटिक यूजेज यू विल गेट इट, अदरवाइज यू विल गेट इट रॉन्ग, बट इट्स ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पे वी आर, द क्वेश्चन इज अगेन यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. ही हैज पुट डैश द मीटिंग. सो पुट ऑफ, पुट अवे, पुट अप, पुट आउट, पुट ऑन, ये सब चीजें हैं, राइट. अब इसके अंदर अगेन इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट तो यू आर सॉर्टेड. तो मीटिंग को क्या कर दिया उसने? मतलब उसने मीटिंग कंडक्ट किया कि उसने मीटिंग कंडक्ट नहीं किया, राइट. सो जनरली हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि मीटिंग कंडक्ट नहीं किया. पुट कुछ तो किया, मतलब उसने मीटिंग नहीं कंडक्ट किया होगा. दैट इज बेसिकली व्हाट द काइंड ऑफ थीम ऑफ द सेंटेंस इज. अब पुट ऑफ द मीटिंग, अब पुट ऑफ इज द प्रॉपर यूजेज, बिकॉज पुट ऑफ कर दिया मैंने, मतलब अभी मैं नहीं करूंगा, बाद में कभी तो करेंगे. दैट इज द इडियोमेटिक यूजेज. पुट अवे द मीटिंग नहीं कर सकते, मीटिंग को उठा के बाजू में नहीं फेंक सकते. पुट ऑफ मतलब आज करने वाले थे बट अभी ऑन से मैंने ऑफ कर दिया स्टेटस को. दैट इज द आइडिया. पुट अप, यू पुट अप विथ समवन. अगर कोई भी चीज तुमको पसंद नहीं है या कोई इंसान तुमको पसंद नहीं है बट यू आर पुटिंग अप विद दैट इंडिविजुअल, दैट बेसिकली मीन्स यू आर बर्दाश्त कर रहे हो किसी को, राइट, सह रहे हो किसी को. दैट इज पुट अप. पुट आउट इज यू पुट आउट अ फायर. तो कहीं पे अगर एक आग लग गई है तुमने उसको बुझा दिया तो यू हैव पुट आउट अ फायर. Put on, you put on clothes, you are wearing something. So the correct answer here is option A, that is put off the meeting. That is the answer to this one. Next देख लेते.
कोर्स फॉर चैरियट रेसेस, इसका एक सिंगल वर्ड मुझे चाहिए. अगेन दिस माइट बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ यू, सो एक बार ट्राई कर लेना इसको, देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हैंगार, हिप्पोड्रोम, सैनिटोरियम, अरीना एंड एयरडॉक ऐसे दिया हुआ है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चैरियट रेसेस. चैरियट रेसेस होते हैं हॉर्सेस के लिए जनरली. हैंगार, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस, दिस इज फॉर एन एरोप्लेन, राइट. सो एरोप्लेन को जहाँ पे पार्क करते हैं इन अ वे, उसको बोलते हैं हैंगार इन अ वे. तो ये तो चैरियट रेसेस का कोर्स तो नहीं हो सकता. हिप्पोड्रोम, नाउ यू हैव हर्ड ऑफ हिप्पो, हिप्पोपोटेमस करके एक नाम सुना होगा, राइट. हिप्पोग्रिफ करके भी सुना होगा. इफ यू हैव हर्ड हिप्पोग्रिफ देन इट्स इजियर फॉर यू, बट हिप्पोपोटेमस तो सुना होगा. नाउ यू माइट हैव वंडर्ड कि यार ये ऐसा कैसा नाम लिख दिया, हिप्पोपोटेमस क्या नाम होता है, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर इनटू वर्ड्स यू विल गेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली. सैनिटोरियम, अब सैनिटोरियम के अंदर एक चीज है सैनिटी, राइट. सैनिटी या सेन ये होते हैं जहाँ पे मतलब आई एम मेंटली स्टेबल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम काम, आई एम कंपोज्ड, आई एम पीसफुल, सेन, ये होता है. अरीना, जनरली हम बोलते हैं स्पोर्ट्स के अंदर हम अरीना की बात करते हैं. सो अ लॉट ऑफ पीपल आई नो वुड हैव मार्क्ड ऑप्शन डी, दैट इज अरीना फॉर दिस क्वेश्चन, बट अरीना आंसर नहीं है. अरीना इज फॉर स्पोर्टिंग इवेंट्स इन जनरल. तो कहीं पे भी अगर एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे लोग कुछ खेलकूद कर रहे हैं या फिर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन अरीना. बट चैरियट रेसेस के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करेंगे तो उसका नाम है हिप्पोड्रोम. अब यहाँ पे एरोड्रोम बहुत लोगों ने नाम सुना होगा. ड्रोम बेसिकली इज एन एनक्लोज स्पेस या कहीं से मतलब कवर्ड स्पेस, ऐसे कुछ उसको ड्रोम बोलते हैं इन अ वे. हिप्पो इज द कीवर्ड हियर. हिप्पो इज द एडजेक्टिव और द रूट ऑफ हॉर्स. तो हिप्पोपोटेमस का लिटरल मीनिंग है वाटर हॉर्स. सो हिप्पोड्रोम इज वेयर हॉर्स रेसिंग और चैरियट रेसिंग was conducted. So course for chariot races का आंसर होगा हिप्पोड्रोम in this particular context. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पे you have to figure out which one will best express the meaning of the word. ठीक है, तो यहाँ पे the word that has been given to you is germane. अब जर्मेन के बारे में अगर पता होगा तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द आंसर, अगर नहीं पता होगा तो ऑफ कोर्स यू माइट नॉट एंड अप गेटिंग द आंसर, बट इट्स ओके. अब यहाँ पे ये वाला वर्ड भी ठीक है, अगर मिस होता है तो आई एम ओके विथ इट. जस्ट लुक एट द ऑप्शंस दैट यू हैव हियर. सो लॉजिकल, पॉसिबल, रिस्पॉन्सिबल, रेलेवेंट एंड रिप्रेसिबल. अब इसमें सबसे ज़्यादा एंटी ऑप्शन कौन सा लग रहा है? रिप्रेसिबल. रिप्रेसिबल मतलब जिसको दबाया जा सकता है, चुप कराया जा सकता है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. लॉजिकल मतलब जिसमें लॉजिक है, जिसको मैं ए बी सी हेंस डी ऐसे करके बता रहा हूँ. पॉसिबल मतलब सिर्फ पॉसिबल है. रिस्पॉन्सिबल मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास. देन रेलेवेंट. रेलेवेंट मतलब इट इज रेलेवेंट टू कॉन्टेक्स्ट. जो भी मुझे चाहिए वो वैसा ही है, कुछ बाहर की चीजें नहीं बता रहा हूँ. सो इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रेलेवेंट. जनरली बोलते हैं जर्मेन टू दिस कॉन्वर्सेशन, जर्मेन टू दिस डिस्कशन, ये बोलते हैं. दैट इज बेसिकली समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू द डिस्कशन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. वुड यू माइंड डैश ऑन द लाइट. अब यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है. सो सी वॉट यू कैन. Would you mind switching on the light? Would you mind to switching on the light? Would you mind switch to on the light? Would you mind to be switching on the light? तो अब यहाँ पे obvious चीज़ें तो बता सकते हैं. Would you mind switch to on the light? ये तो गलत हो गया. Would you mind to be switching on the light? Would you mind to be नहीं होता, right? यहाँ पे would you mind switch on the light? ये भी नहीं होता, ठीक. Would you mind switching on the light? अब would you mind switching on the light का मतलब ये होता है that switching on the light is a verb, an act that is there. Would you mind is a polite way to request someone, कि मैं किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस लाइट को ऑन करोगे क्या, ये क्वेश्चन है मेरा. नाउ ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑब्वियसली येस, बट देन इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल, बीइंग पोलाइट. वुड यू माइंड मतलब क्या तुमको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई लाइट को स्विच ऑन कर दो. दैट इज द क्वेश्चन. समवन सेज नो प्रॉब्लम एंड दे विल स्विच ऑन द लाइट. ठीक है, सो वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन द लाइट, दैट इज द idiomatic usage that you have here. So the correct answer here is option A for this question. Next देख लेते हैं. Again you are filling the blanks. Take possession of the records immediately lest they are dash with. अब यहाँ पे appropriate option चाहिए, so जो भी यहाँ पे आएगा वो होगा. अब इसका मतलब क्या बनता है? टेक पोजेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स मतलब रिकॉर्ड्स, कुछ बुक्स होंगे, कुछ रजिस्टर्स होंगे, उसको अपने कब्जे में ले लो, जल्दी से उसको उठा लो वहां से या कहीं और शिफ्ट कर दो. लेस्ट दे आर डैश विथ. अब ये लेस्ट का मीनिंग क्या है समझ में ना तो भी ठीक है, बट पॉइंट क्या है, जल्दी से ले लो अनलेस. तो लेस्ट अनलेस उसमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कोई उस रिकॉर्ड को छीन ले सकता है, कोई वो रिकॉर्ड को चेंज कर सकता है, कोई उस रिकॉर्ड को फाड़ देगा, फेंक देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, कुछ भी करेगा, मुझे नहीं पता क्या करेगा.
लेस्ट दे आर डैश विथ। तो रिकॉर्ड्स को जनरली क्या करते हैं, दैट इज द पॉइंट। सो किसी ने अगर कुछ एक चीज रखा होगा वहां पे, सो व्हाट एग्जैक्टली आर पीपल प्रोन टू डूइंग इट, तो जनरली रिकॉर्ड्स को टैम्पर किया जाता है। टैम्पर मतलब मैंने उसके ऊपर कुछ तो ऐसे पेन से लिख दिया या इंक फेंक दिया या कुछ उस पर मड डाल दिया या फिर 2 पेज फाड़ दिए बीच में से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टैम्पर्ड। डिस्ट्रॉयड इज ऑल्सो फाइन, बट रिकॉर्ड स्पेसिफिकली दिया तो रिकॉर्ड्स आर टैम्पर्ड ज्यादा बेटर हो जाएगा। मिस हैंडल्ड विथ, मिस हैंडल्ड विथ नहीं होता, मिस हैंडल्ड होता है। डिस्ट्रॉयड विथ नहीं होता, लेस्ट दे आर डिस्ट्रॉयड होता तो फिर भी मैं मान सकता था, बट समथिंग विथ होना चाहिए। सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज टैम्पर्ड विथ, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर टू दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज अ ग्रामेटिकल और इडियोमेटिक एरर इन इट। सो एक बार देख लेना सारे पार्ट्स एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। Like the commission has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly। ठीक है, अब यहाँ पे लग सकता है कि यार बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ लग तो नहीं रहा है, तो मैनेजेबली क्वेश्चन लग रहा है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन एंड दैट प्रॉब्लम इज लाइक द कमीशन हैज रिकमेंडेड इन इट्स रिपोर्ट। ठीक है, लाइक आई सेड नहीं होता, लाइक आई सेड समथिंग ऐसा बिल्कुल गलत यूजेज है, अगर ये कर रहे हो तो ये मत करना, एज होता है। So as the commission has recommended in its report, the rules need to be enforced more strictly as the commission has recommended। कैसे करेंगे हम, जैसे उन्होंने बोला है। तो like although it translates into जैसे, और हम लोग बोलते हैं like the teacher told you, you have to do it, but as the teacher asked you to, you have to do something। So like और as के अंदर काफी difference होता है। This is the problem। So the correct answer here is option C, that part A has a problem in this particular question। Next question देख लेते हैं एक बार। Now you have to figure out which is most nearly the opposite in meaning। So question stem बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। Read the question stem properly। Everyone wanted to be the harbinger of the good news to the king। अब सोच लो कॉन्टेक्स्ट क्या है, नहीं पता हार्बिंगर का मतलब, बट क्या होगा, एवरीवन वांटेड टू बी द हार्बिंगर ऑफ गुड न्यूज टू द किंग का मतलब क्या है, एक किंग बैठा है वहां पे, ठीक है, अब वो किंग को गुड न्यूज बतानी है, एवरीवन वांट्स टू शेयर द गुड न्यूज, तो मतलब क्या करना है, सबको एक साथ जाके बताना है क्या गुड न्यूज, नहीं, जो सबसे पहले जाके किंग को गुड न्यूज बताएगा या बताएगी उनको क्या मिलेगा, उनको मिलेगा इनाम, and that is what needs to be done here। तो everyone wanted to be someone who was the first person to give the good news to the king। ठीक है, तो यहाँ पे टेंडर ऑफ द गुड न्यूज टू द किंग, ठीक है, ओपोनेंट अगेन डजंट रियली इज नॉट रियली ऑपोजिट ऑफ दैट, तो मुझे फर्स्ट आना है, तो लास्ट आएंगे वो, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द ऑप्शन प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब जो भी चीज पहले आती है, एक चीज हो रही है उसके पहले आती है उसको बोलते हैं प्रीकर्सर। ठीक है, फॉलोअर, फॉलोअर इज बाद में आने वाली चीज, एंड फोर रनर इज अगेन समवन हु इज एट द फोर फ्रंट, फोर फ्रंट बोलते हैं सबसे आगे, वैसे ही फोर रनर होता है सबसे आगे। सो ई इज नॉट माई आंसर, सी इज नॉट माई आंसर। टेंडर जनरली होता है टेंडर चेंज मतलब देना, ठीक है, अब ये भी ठीक है, इन अ वे दिस इज स्टिल फाइन। ओपोनेंट ऑफ द गुड न्यूज तो नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट राइट। सो फॉलोवर, हार्बिंगर का ऑपोजिट होता है फॉलोवर। अब यहाँ पे अपने को रिप्लेस नहीं करना है वर्ड को, दैट इज व्हाट आई टू अंडरस्टैंड, रिप्लेस नहीं करना है, आई वांट द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। सो हार्बिंगर मतलब सबसे पहले, फॉलोवर मतलब पीछे जो चलता है। सो यहाँ पे नियरली द ऑपोजिट होना चाहिए, इट्स नॉट द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। सो हार्बिंगर ऑफ द गुड न्यूज इज समवन हु विल टेल द गुड न्यूज टू द किंग। जनरली इसका मतलब होता है इवन बिफोर इट हैपन्स, तो अगर जो भी चीज़ होने वाली है उसके पहले अगर मेरा, अगर कोई बोलते हैं ना इसी कोई कुछ अगर दिख गया कोई चीज़, तो देन आई थिंक दैट अच्छा समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, ये ना गुड ओमेन है। सो दैट इज बेसिकली इन अ वे यू कैन से हार्बिंगर ऑफ द गुड न्यूज टू द किंग। सो पहले जो बताएगा वो होगा, फॉलोअर इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो दैट इज नॉट द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। Now you have to figure out which one best expresses the meaning of the given word। and यहाँ पे word क्या दिया अपने को, the word that has been given to us is foment। ठीक है, so foment is the word that has been given to us। तो उसका क्या मतलब हो सकता है, that is the question here। ठीक है, so क्या होगा foment, तो यहाँ पे foment, I am sure some of you might have heard of this term called hot fomentation। So generally whenever you have some kind of an issue in your skin, let's say कुछ इंजरी हो जाती है एंड उसके बाद तुम्हारा कुछ स्वोलन हो जाता है, कुछ तुम्हारा स्किन के नीचे थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है लेट्स से, तो डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं, एक वार्म क्लॉथ लो और उसको ऊपर से ऐसे ऐसे सेको, दैट इज फोमेंटेशन। ठीक है, सो फोमेंटेशन वो होता है, तो वहां से फोमेंट यू कैन से। तो इंस्टिगेट इज अ वर्ड दैट वी हैव, वेक्स इज अ वर्ड दैट वी हैव, वेस्ट, रिनाउंस, सीज, ये सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, राइट। सो अब यहाँ पे फोमेंटेशन की ही बात करूँ कि फोमेंटेशन में क्या करते हैं हम, ऐसे उसमें ब्लो कर सकते हैं और उसको यहाँ पे प्रेस करेंगे तो दैट विल मेक इट स्लाइटली बेटर। लाइक आई हैव समथिंग ऑन माई आई हियर, आई विल डू दिस एंड आई विल जस्ट पुट इट हियर सो दैट देयर इज सम वार्म कंप्रेशन दैट हैपेंस। ठीक है, अब वेक्स का मतलब क्या होता है, वेक्स का मतलब आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ यू डोंट नो अबाउट दिस, बट वेक्स का मीनिंग होता है
अनॉयंस. सो अनॉय करेंगे ना किसी को तो उसको बोलते हैं वेक्स कर रहे हैं. दैट इज नॉट अनॉयंस हियर. सो ये अपना आंसर नहीं है. इंस्टिगेट, तो मैं कोई चीज़ को शुरुआत कर रहा हूँ, कोई चीज़ की इंस्टिगेट कर रहा हूँ, मैं पोक करके उसको आई एम ट्राइंग टू पुट थिंग्स इनटू मोशन, ये मैं कर रहा हूँ, तो दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी. वेस्ट, फोमेंट मतलब वेस्ट नहीं होता. रिनाउंस, रिनाउंस इज गिव अप, मैंने छोड़ दिया सब चीज़. आई रिनाउंस्ड अल्कोहल लेट्स से, तो मैंने छोड़ दिया वो सब चीज़, तो वो नहीं है यहाँ पे. एंड सीज अगेन मीन्स गिव अप, छोड़ दिया मैंने. सो रिनाउंस एंड सीज आर इन द सेम मीनिंग, तो यहाँ पे ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. वेक्स का मतलब नहीं पता, वेस्ट, फोमेंट आई डोंट नो, बट वेक्स, इंस्टिगेट, एंड वेस्ट में से कोई तो एक आंसर होगा ए बी सी में से. इफ यू आर मार्क ए, इट्स ओके, आई एम फाइन विद इट. बी मार्क क्या होगा, यू गेट द राइट आंसर. सी मार्क क्या होगा तो रॉन्ग हो जाएगा. इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट ए बी सी में से कुछ तुक्का होना चाहिए, तुक्का डी या ई में से नहीं होना चाहिए. दैट इज द आइडिया. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, दैट इज इंस्टिगेट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग, मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग. A serene mind can never be the pioneer of a great revolution. ठीक है, अब क्या होगा इसका मतलब, रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मतलब लोगों ने बहुत लड़ाई की, एक एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़े हो गए, आर्म्स पिकअप कर लिए, राइट. सो रेवोल्यूशन जो बोलते हैं दैट इज बेसिकली एक मैंने अगेंस्ट किसी के कुछ कैंपेन कर दिया, दैट इज रेवोल्यूशन इन अ वे. अब पायनियर मतलब जिसने सोचा कि अरे हमको ना रिवॉल्ट करना चाहिए, वी हैव टू गेट टुगेदर, वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवर रिसोर्सेज एंड मेक श्योर दैट वी आर ओवरथ्रोइंग दैट गवर्नमेंट. ऐसा हो सकता है, ठीक है. अब यहाँ पे पायोनियर ऑफ ग्रेट रेवोल्यूशन होना है, तो कौन से टाइप का माइंड ये नहीं कर पाएगा. अब अगर मुझे किसी के अगेंस्ट खड़े होकर लड़ना है लेट्स से, देन अगर मैं काम और कंपोस्ट हूं तो मैं लड़ पाऊंगा, नॉट रियली. बट अगर मैं जनरली अग्रेसिव हूं तो आई विल बी एबल टू फाइट, राइट. आई विल बी एबल टू मे बी पायनियर अ ग्रेट रेवोल्यूशन, हो सकता है. तो सीरीन क्या होगा, सीरीन बेसिकली इज गोइंग टू रिमेन काम, कंपोस्ट, स्टिल, ये सब होगा सीरीन. एक और वर्ड सुना होगा सेरेनिटी, ब्लिसफुलनेस, पीसफुलनेस, ये होता है सेरीन, ठीक है. तो अब यहाँ पे सेरीन का ऑपोजिट क्या होगा, काम अगर नहीं हो तो तुम क्या हो, तुम एजिटेटेड हो, ये हो सकता है. सो जॉक्युलर इज समथिंग दैट इज ह्यूमरस, फनी, उसको जॉक्युलर बोलते हैं, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है. अर्नेस्ट, सीरीन का मीनिंग अर्नेस्ट हो सकता है, ठीक है. अर्नेस्ट मतलब यू कैन से हम्बल और हार्ड वर्किंग, ऐसे जो बोलते हैं ना, तो वो टर्म्स होते हैं अर्नेस्ट. सो दैट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ दिस. प्लासिड, प्लासिड अगेन बेसिकली मीन्स प्लेकेट, एक वर्ड होता है, सो उस टाइप का ही होगा. अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज काम, फ्लैट, वैसे. एजिटेटेड इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, मुझे काम का ऑपोजिट चाहिए, एजिटेटेड माइंड हो सकता है. पॉइस्ड, पॉइस्ड अगेन मीनिंग काम, कंपोस्ट, ये सारी चीजें होंगी. सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अब यहाँ पे वी आर लुकिंग एट एन ईडियम और प्रोवर्ब, उसका मीनिंग मुझे चाहिए. टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड. अब लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब कुछ क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स कुछ घिरे हुए हैं और उसमें यू आर लॉस्ट, ठीक है. मतलब हम अटक गए कहीं पे, अपने को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. व्हेन वी आर लॉस्ट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर टू गो और व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. सो ऑप्शन ए टू बी परप्लेक्स्ड. परप्लेक्स्ड का मतलब होता है परप्लेक्सिटी, अगर सुना होगा. परप्लेक्स्ड या परप्लेक्सिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा आई एम कन्फ्यूज्ड, राइट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके. सो दिस इज वेरी क्लोज टू द मीनिंग. टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू, टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब टू बी कंसील्ड फ्रॉम व्यू का मतलब क्या हो गया, मैं कहीं पे देख रहा हूँ और बीच में अगर क्लाउड है तो आई कांट लुक एट इट, लुक एट बियॉन्ड दैट क्लाउड, ये हम बोल रहे हैं. बट दैट इज नॉट व्हाट दिस मीन्स. टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स इज डिफरेंट. टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड मतलब मैं अपने कुछ सोच में खो गया हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए. सो दिस ऑल्दो सीम्स टू बी राइट, इट इज नॉट द आंसर हियर. टू मीट विथ वंस डेथ, ये कुछ अलग ही लेवल में चला गया. वी आर नॉट लिटरली गोइंग टू द क्लाउड्स, ऐसा कुछ नहीं है. टू फाइंड वन सेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, तो नहीं. लॉस्ट इन द क्लाउड क्यों होंगे अगर हम लोग कंफर्टेबल पोजिशन में है तो नहीं. एंड टू बी अनबैफल्ड, अनबैफल्ड मतलब बैफल्ड इज लाइक शॉक्ड, सरप्राइज, ये कैसे हो गया करके. अनबैफल्ड मतलब हम लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा. तो लॉस्ट इन द क्लाउड, सम पीपल माइट से ई, बट द आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज टू बी परप्लेक्स्ड. सो कोई भी चीज में अगर कंफ्यूज हो तो हम बोलते हैं टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन वी हैव टू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और प्रोवर्ब. टू रिप अप ओल्ड सोर्स, सो थिंक अबाउट इट, व्हाट विल बी द आंसर. ओल्ड सोर्स मतलब पुराने जख्म, रिप अप उनको खोल दिया. सो पुराने जख्म को ना मैंने थोड़ा सा खोल दिया, दैट इज द प्रॉब्लम. अब पुराने जख्म लिटरली तो मैं नहीं बैठ के उसको खोलूंगा, तो यहाँ पे क्या इशू हो रहा है. सो पहले कुछ हुआ था उसको मैं फिर से सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ था, तो आई एम डिगिंग अप द पास्ट एंड ट्राइंग टू सी व्हाट हैज हैपेंड देयर, ठीक है. सो लेट्स सी. टू सेंश्योर समवन इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स, सेंश्योर मतलब मैंने किसी को बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट कुछ बोल दिया, तो सेंश्योर कर दिया मैंने इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स. दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स, राइट. मैंने अपने
अपने ही जख्म पुराने वाले खोले और उसको रेमिनिस किया, या फिर कुछ पुराना चीज़ हुआ था उसको मैं वापस बाहर लेके आ रहा हूँ, विच इज़ नॉट रियली प्लेजेंट थिंग, सोर्स आर नॉट प्लेजेंट, सो ये हम लोग नहीं बोल सकते. टू स्ट्रेन वंस थॉट्स टू द मोस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, तो ये नहीं है. टू रिवाइव अ क्वारल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, लिटरली इट्स द राइट मीनिंग, राइट. रिप अप ओल्ड सोर्स मतलब ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, रिवाइव करेंगे मतलब वापस जिंदा करेंगे. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन सी, टू रिवाइव अ क्वारल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन. टू प्रिजर्व वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, बिल्कुल नहीं है. रिप अप द ओल्ड सोर्स किया तुमने तो तुम डेफिनेटली अपने आप को हार्म कर रहे हो, सो नॉट दी वन. टू रेप्रीमैंड, रेप्रीमैंड मतलब किसी को डांट दिया, उसको बोलते हैं रेप्रीमैंड. जो टीचर स्टूडेंट्स को डांट देते हैं उसको बोलते हैं रेप्रीमैंड. सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू रिवाइव अ क्वारल विच वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन नाउ. अब यहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट कौन से पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर. ठीक है. सो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट आर द क्वालिटीज विच वी लुक फॉर व्हेन वी इंटरव्यू एप्लीकेंट्स. अब ठीक लग रहा है यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे इफ यू लुक एट द फर्स्ट पार्ट, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ ट्रेट, इंटेग्रिटी नाउन है ना, ट्रेट, एंड बीइंग इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस होना चाहिए अगर मुझे पैरेललिज्म मेंटेन करना है तो. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड पैरेललिज्म. पैरेललिज्म के अंदर क्या होता है? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड बीइंग इंटेलिजेंट, इन सबको एक साथ होना चाहिए, तो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड इंटेलिजेंस होना चाहिए. सो पार्ट ए और ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट आंसर हियर. एंड नाउ दैट वी हैव रीच्ड द मिड पॉइंट ऑफ दिस वीडियो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेललिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स और काफी सारे बाकी के कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस QA, VR, AR सारे के सारे कवर्ड है इन आवर वीडियो सेशंस दैट आर देयर. इफ यू वांट टू गो फॉर ओनली द वीडियो सेशंस ऑफ द CET क्रैश कोर्स जिसके रिकॉर्डिंग्स available है, you will have to pay 1999 rupees. So use the relevant code from the description box below to avail this offer. And the second part is if you want to also take tests over the last few weeks, तो टेस्ट भी अगर देने हैं तो उसके साथ अगर प्रोग्राम बंडल करके लेना है तो you will have to pay 2999 rupees. दोनों codes are there in the description box below. Make sure that you check them out. Let's look at the next question now. अब यहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट कि आइटैलिसाइज्ड जो पार्ट है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं. सो अगेन हैव अ लुक एट इट, देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट. सो अगेन सम पीपल माइट थिंक ठीक है, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज, सो सनराइज से शुरू किए हैं, एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, तो सनराइज से शुरू किए हैं और सनसेट तक कंटिन्यू करेंगे. फेयर इनफ. बट यहाँ पे द फार्मर्स आर वर्किंग आएगा कि उन लोगों ने शुरू किया था कहीं से, वो होगा. द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज नहीं होता. ठीक है. बेसिकली मीन्स यू हैव बीन वर्किंग, मतलब तब से वो हैव बीन वर्किंग आएगा यहाँ पे. ठीक है. द फार्मर्स आर वर्किंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आर वर्किंग नहीं होगा, हैव बीन वर्किंग. तो पिछले टाइम से, पास्ट में वो वर्किंग शुरू किया था उन्होंने, तो हैव बीन विल बेसिकली बी दैट पास्ट वाला पार्ट दैट विल बी देयर. हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू, तो कर रहे थे और करेंगे, तो दो अलग चीजें हैं. सो हैव बीन वर्किंग, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज. फार्मर्स फील्ड सनराइज से फील्ड में काम कर रहे हैं. ठीक है. एंड वो करते रहेंगे टिल सनसेट, ये बोल रहे हैं. सो कर रहे हैं का मतलब हैव बीन वर्किंग. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ऑप्शन ए इज द राइट वन. द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज मतलब काम खत्म हो गया, फिर कंटिन्यू क्यों करेंगे, तो दैट इज नॉट राइट. वेयर वर्किंग इन द फील्ड मतलब उन लोगों ने अभी काम करना बंद कर दिया, तो ये भी नहीं होगा. हैव वर्किंग तो कुछ नहीं होता, एंड नो इंप्रूवमेंट ऑब्वियसली इज नॉट द आंसर. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट बात देख लेते हैं. Many cities were incinerated during the war. अब इसमें italicized word को कैसे represent करेंगे ये देखेंगे. This was one of the doubts that was asked on our official CET Telegram group as well for the enrolled students. तो मैंने वही चीज़ बोला था, वही मैं यहाँ पे भी बोलूँगा. So many cities were incinerated during the war. So incineration क्या होता है? So incinerated का literal meaning है burnt. जो incense stick की बात की है, similar root you can say. I'm not saying it's the same root, but similarly you can remember. Incense sticks मतलब अगरबत्ती जो होता है जिसको burn करते हैं और जिसमें से स्मेल आता है, बेसिकली स्मोक एंड स्मेल यू कैन गेट. ठीक है. तो इंसिनरेट कर दिया मतलब जला दिया कोई चीज को. अब जला दिया का लिटरल मीनिंग विल बी बर्न्ड. सो मेनी सिटीज वेर बर्न्ड ड्यूरिंग द वॉर. अटैक्ड ड्यूरिंग द वॉर, यस. इंसिनरेट करना मतलब अटैक करना हो सकता है. बॉम्ब्ड, पॉसिबल. समवन आस्क्ड मी दैट बॉम्ब करने से भी तो जल जाएंगे, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट बॉम्ब से पीपल विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स और समथिंग. बॉम्ब जनरली गिर के उसका श्रैपनेल बाहर आता है, दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. द एक्सप्लोजन और द फायर इज जनरली नॉट द प्रॉब्लम, द श्रैपनेल माइट बी द प्रॉब्लम. तो ये भी नहीं राइट है. मतलब अगर मेरे पास बर्न्ट ऑप्शन है तो आई डेफिनेटली नॉट से बॉम्ब्ड एज द आंसर.
सीज्ड, अगेन सीज्ड इज बेसिकली स्टॉप्ड, ये भी नहीं हो सकता, वेट भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बर्न्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पे यू हैव टू फाइंड द वन दैट इज नियरेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड वैंक्विश। सो वैंक्विश क्या होता है, अगर इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरी इजी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब वैंक्विश का मतलब कॉन्कर, मैंने किसी को डिफीट कर दिया बैटल के अंदर, तो मैंने वैंक्विश किया किसी को, ठीक है, मैंने कॉन्कर किया कोई चीज़ को, तो दैट इज बेसिकली वैंक्विश। सो ऑपोजिट क्या होगा, मैंने कॉन्कर नहीं किया, तो मैं कॉन्कर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं या तो गिव अप मार रहा हूँ या तो बिल्कुल कॉन्कर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो डिबेस, अब यहाँ पे इसकी मीनिंग्स भी पता कर लेना। सो एवरी वोकैबुलरी क्वेश्चन इज द सोर्स फॉर 5 more वर्ड्स, तो वैसे करके धीरे धीरे वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो डिबेस क्या होता है, लेट मी नो इन द ऑप्शंस व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिबेस। देयर आर 2 पार्ट्स, डी एंड बेस, तो बेस हटा दिया इन अ वे, सो डिबेस, ठीक है। देन यू हैव रूइन, रूइन अगेन अपने को पता है, रूइन कर दिया मतलब रूइंस जो होते हैं, जो पुराने खंडर होते हैं उसको रूइंस बोलते हैं, ठीक है। रूइन मतलब मैंने बर्बाद कर दिया किसी को, सो वैंक्विश किया, बर्बाद किया, सिनोनिम है, ऑपोजिट नहीं है। सरेंडर, दिस कुड बी पॉसिबल। वैंक्विश मतलब मैंने किसी को डिफीट किया, मैंने किसी के ऊपर कब्जा कर लिया। सरेंडर मतलब मैंने दे दिया, मुझे नहीं करना भाई, छोड़ दो, ठीक है। सो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ वैंक्विश। डिस्ट्रॉय, वैंक्विश, डिस्ट्रॉय यू कैन से आर वेरी क्लोज इन मीनिंग। एंड सरमाउंट, सरमाउट का मतलब क्या होता है, अगेन यू कैन से व्हाट इट इज, बट अगेन सरमाउंट, इनसरमाउंटेबल सिचुएशंस वगैरह होता है, चैलेंजेस होते हैं। सो सरमाउंट, इनसरमाउंटेबल मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, सरमाउंट मतलब मैंने कुछ किया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक आर दी मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड्स। नहीं बताए तो भी चलेगा, बट अपने रेफरेंस के लिए करके रख देना, ठीक है। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज सरेंडर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगेन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड। सो डिवोट दिया हुआ है, सो डिवोट का ऑपोजिट क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब डिवोट, अब डिवोट अगर पता होगा तो वेरी इजी, अगर नहीं भी पता है तो यू कैन अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, दैट डिवोट, डिवोट साउंड्स वेरी क्लोज टू डिवोशन, डिवोटी। डिवोट कर दिया मैंने, अपनी सारी जिंदगी डिवोट कर दी टू डूइंग समथिंग, सो दैट इज बेसिकली द रूट दैट इज देयर इन अ वे। तो यहाँ पे मैं फिर भी बोल सकता हूँ दैट, ठीक है, डिवोट का मतलब है मैंने किसी चीज़ को कुछ डिवोट कर दिया, ठीक है। सो मैंने कोई चीज़ को लेके सरेंडर कर दिया, मैंने कोई चीज़ को जाके बोला कि भाई मैं यही करूँगा, राइट। सो दैट इज डिवोट इन अ वे। अब इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, इसका ऑपोजिट होना चाहिए मैं बिल्कुल किसी चीज़ को सरेंडर नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल कोई चीज़ को नहीं मानता हूँ, दैट इज द ऑपोजिट। सो मैग्निफिसेंट कांट बी दैट वन, कि मैं सरेंडर नहीं कर रहा, मैं किसी को कुछ, मैं किसी को मानता नहीं हूँ, ये तो नहीं होगा। सेंटली भी नहीं बोल सकता। स्टूपिड कांट बी द आंसर, क्योंकि कुछ वर्ड होना चाहिए ना उसके लिए, स्टूपिड तो नहीं बोल सकते। irreverent, now irreverent is that word, irreverent मतलब revere, if I revere someone it means I adore someone, I look up to someone. So let's say for example मेरे कोई idol है आजकल के ज़माने में, let's say if you are following cricket then विराट कोहली, I'm irreverent, right, irreverential feeling है मेरे पास, ठीक है, या रोहित शर्मा let's say, या फिर MS धोनी let's say, या whoever is the one that you are a fan of, ठीक है, तो उसको बोलते हैं reverence, मैं revere कर रहा हूँ किसी को। irreverent का मतलब होता है मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करता किसी की, I am not going to take anybody or that person as my idol, तो मैं नहीं ले सकता उसको, ठीक है। So option D, irreverent is the answer to this question. Devote का opposite will be irreverent here. Next question देख लेते हैं यहाँ पे। Some people are extremely fastidious in their choice of dress, और अपने को क्या करना है, best expresses the meaning of the italicized word. So इसका meaning मुझे यहाँ पे ढूंढ के निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, आर एक्सट्रीमली फैस्टिडियस, फैस्टिडियस इन द चॉइस ऑफ ड्रेस। अब फैस्टिडियस का मतलब क्या होता है, अगेन इफ यू नो द वर्ड देन वेरी इजी फॉर यू, नहीं पता तो भी देख सकते हो। तो भाई एक्सट्रीमली फैस्टिडियस चॉइस ऑफ ड्रेस, तो किसी को अगर ड्रेस शॉपिंग के लिए लेके जाते हो, सो एक्सट्रीमली क्या बोलेंगे हम लोग, फैस्टिडियस का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी खरीद के बाहर निकलेंगे, या बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस? ऑफ कोर्स द कॉन्टेक्स्ट इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा है क्या, but they don't really make their choices very quickly, they are very picky, they are very selective in their choice of dress. तो उसका क्या यहाँ पे सिनोनिम हो सकता है? पॉम्पस, पॉम्पस का मतलब है मैंने बहुत शो शा करके बहुत ज़्यादा उसका एक माहौल बना दिया, दैट इज़ बेसिकली पॉम्पस, आई एम बोस्टफुल एंड ऑल, उसको पॉम्पस बोलते हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर लुकिंग एट। फसी, आई एम क्रिएटिंग अ फस, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए, तो मैं बहुत फसी हूँ इन दी चॉइस ऑफ माई ड्रेस, तो ये वाला ठीक होगा। केयरलेस इन देयर चॉइस ऑफ ड्रेस, नॉट आई कांट से केयरलेस, राइट। एक्सट्रीमली केयरलेस कैसे बोल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता। चॉइस ऑफ ड्रेस मतलब तुम दिमाग लगा के कुछ ड्रेस चूज कर रहे हो ना,
डिस्क्रिमिनेटिंग इज नॉट रियली दी वर्ड दैट विल टॉक अबाउट. जब चॉइस ऑफ ड्रेस आता है, डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर हो सकता है टुवर्ड्स अ सेट ऑफ पीपल, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, सेक्ट, कुछ भी हो सकता है, बट ड्रेस में थोड़ी डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो वो तो नहीं होगा. क्लमसी, अगेन क्लमसी एंड केयरलेस आर सिमिलर. केयरलेस नहीं बोल सकते क्लमसी को टेक्निकली. क्लमसी जहाँ पे मतलब लोगों के कुछ रिफ्लेक्सेस ही नहीं है, तुम कुछ फेंकते हो तो पकड़ ही नहीं पाते, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, दे कीप ऑन बैंगिंग देयर नीज हियर एंड देयर, तो क्लमसी होते हैं वो लोग. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली क्लमसी. क्लमसी पो जो बोल सकते हैं कुंग फू पैंडा के अंदर, द पैंडा दैट इज देयर, राइट. सो वो क्लमसी बोल सकते हैं इन अ वे. सो फसी इज द आंसर हियर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं. यहाँ पे एज अ लास्ट डैश द स्टूडेंट्स हैव अपील टू द प्रिंसिपल. सब कुछ कर लिया, अब ये लास्ट चीज बची है, तो इसको क्या बोलते हैं? इडियोमैटिक यूजेज ही है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं. तो जनरली दिस इज वन दैट वी टॉक अबाउट. सो वी विल टॉक अबाउट द लास्ट रिजॉर्ट. सो कुछ भी नहीं है, सबसे लास्ट रिजॉर्ट, समथिंग दैट वी रिजॉर्ट टू, मतलब ये मैं करूँगा लास्ट में, यही मेरी चीज़ें जो करूँगा, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ पे प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ, इसके अगेंस्ट मुझे वन वर्ड चाहिए दैट टॉक्स अबाउट दिस. सो क्या हो सकता है? तो अगेन थिंक अबाउट दिस एंड देन वी विल डिस्कस दिस वन. सो यहाँ पे what is it that you're talking about? calumny. अब calumny का मतलब क्या होता है? दिस इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड बाय द वे. जिन्होंने एनमैट दिया होगा शायद calumny पढ़ा ही होगा, बिकॉज एनमैट के वोकैबुलरी में calumny काफ़ी बार आ चुका है. सो calumny का मतलब होता है स्लैंडर. मैंने किसी के बारे में ना बहुत ही खराब चीज़ें बोल दी, कुछ नॉनसेंसिकल चीज़ें बता दी, किसी को मैंने नीचा दिखाने के लिए कुछ तो मैंने खबर फैला दी. दैट इज calumny इन अ वे. ऑबिचुअरी जो पेपर में या न्यूज़पेपर में लिख के आता है, राइट, न्यूज़पेपर लिख के आता है कि दिस पर्सन पास्ड अवे, उसका एज इतना था, दे आर सर्वाइव्ड बाय सो मेनी किड्स, ग्रैंड किड्स एंड सो ऑन. तो ये सब चीज़ें हैं, एंड कुछ मेमोरियल सर्विस है तो उसके लिए इन्विटेशन होता है. सो दैट इज एन ऑबिचुअरी, लिटरली प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ. तो प्रिंट करना कभी कभी ज़रूरी हो सकता है, कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस वगैरह होते हैं, तो यू हैव टू डू दैट. ठीक है, या फिर ऑफकोर्स एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड यू डू दैट. सो ऑबिचुअरी इज लिटरली अ प्रिंटेड नोटिस ऑफ समवन्स डेथ. कॉन्डोलेंस, अ लॉट ऑफ पीपल राइट दिस. अगर ऑबिचुअरी नहीं पता तो कॉन्डोलेंस लिख देते हैं, बट कॉन्डोलेंस इज ऑफ कोर्स अ हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड. तो हम लोग जनरली कॉन्डोलेंसेस भेजते हैं ऑन फोन्स, मैसेजेस, मेल्स, ये सब हम करते हैं. प्रिंट करके तो नहीं भेजते. तो यहाँ पे कॉन्डोलेंस इज नॉट एग्जैक्टली प्रिंटेड. यू कैन से इट एज वेल, हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस बोल सकते हो, यू कैन टाइप इट एंड सेंड इट एज वेल, चलेगा. बट कॉन्डोलेंस इज जहाँ पे हम लोग वी आर फीलिंग सैड फॉर समवन, वी आर बीइंग एम्पैथेटिक टू समवन, तो ये होगा. उइया ऑन द अदर हैंड इज द काइंड ऑफ बोर्ड जहाँ पे प्लानचेट बोलते हैं ना लोग, जहाँ पे लोग वो ABCD लिखते हैं, 1 2 3 4 लिखते हैं, एंड दे ट्राई टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, दैट इज उइया. एंड सोलेस, सोलेस मतलब मुझे शांति मिली, आई बेसिकली गेन्ड सम पीस, दैट इज सोलेस. अब वो तो प्रिंटेड नोटिस ऑफ समबडीज डेथ नहीं हो सकता. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑबिचुअरी. नेक्स्ट देख लेते हैं. नो बसेस आर प्लाइंग डैश द रोड्स एज द ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक. तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक प्रेपोजिशन की. सो बसेस कहाँ पे प्लाई करते हैं? रोड्स पे प्लाई करते हैं. सो नो बसेस आर प्लाइंग ऑन द रोड्स, ये उसका आंसर होगा. अपॉन द रोड्स नहीं होगा, इट डॉन्ड अपॉन हिम, ऐसे कुछ होता है. ओवर द रोड्स नहीं होगा, रोड्स के ऊपर से तो नहीं जा रहे, रोड्स पे जा रहे हैं. सो ऑन द रोड्स विल बी द आंसर हियर. टू द रोड्स नहीं होता, इन द रोड्स नहीं होता, रोड्स के अंदर नहीं जा रहे, रोड्स के ऊपर से चल रहे हैं. ठीक है, या रोड्स पर चल रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, ऑन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. He has turned the tables on his enemy. अभी अपने को बताना है इस idiom या phrase का क्या मीनिंग हो सकता है. So in this particular context, we are looking at turn the tables on his enemy. मतलब कुछ कर रहे थे और उसने सीधा टेबल टर्न कर दिया, मतलब जो भी ऊपर था वो नीचे हो गया, जो भी नीचे था वो ऊपर हो गया. That is basically what we are talking about. तो turn the tables मतलब हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जज्बा बदल दिया, सब बदल दिया, राइट, जिंदगी बदल दी. That is basically what we are talking about. He has turned the tables on his enemy. पूरा सब कुछ चेंज हो गया एकदम जल्दी से. That is the thing that you have to think about. So he has hit his enemy, not really. He has created obstacles for the enemy, नहीं, उसने कम बैक कर दिया, मतलब ऐसे कुछ होता और अचानक से चेंज हो गया. So this is not what we are talking about. Behaved hospitably towards, hospitably क्यों कर दिया, मतलब why will I be hospitable to the enemy, मैं उसको अपने घर पे लाके क्यों रखूंगा? Definitely no. Changed possible defeat into victory, yes, that's what we are talking about. So हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, we are talking about things जहाँ पे पूरा चेंज हो गया. तो डिफीट होने वाले थे, अब विक्ट्रियस हो गए. So that is basically D. And he defeated his enemy in a way बोल सकते हैं, but the point here is change. So the correct answer here is going to be option D, changed possible defeat into victory. Next question देख लेते हैं. अब यहाँ पे you have to figure out the meaning of the idiom or phrase.
द रॉबरी वॉज कमिटेड इन दी वी आवर्स ऑफ द डे। तो रॉबरी कब होगी, सुबह सुबह होगी कि रात रात में होगी कि शाम में होगी कि आफ्टरनून में होगी, ये समझना है। वी आवर्स ऑफ द डे बेसिकली मीन्स नून टाइम में कभी रॉबरी होती है, कभी सुना है दोपहर में आके कर लिया करके, चोरी कर ली करके, नहीं ना, इट्स टू ब्राइट आउटसाइड, तो नहीं करेंगे उस टाइम पे चोरी, जनरली नहीं करेंगे। बिफोर मिडनाइट, बिफोर मिडनाइट क्यों करेंगे, मिडनाइट के बाद करेंगे, लेट नाइट करेंगे, बिफोर मिडनाइट क्यों करूंगा। इन द इवनिंग, शाम को कौन करता है, शाम को देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, तो भी नहीं करेंगे। आफ्टरनून में भी नहीं करेंगे, सो कब करेंगे, डॉन में करेंगे। डॉन क्या होता है, अगर सबसे पहला वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्वेश्चन याद है, सो डॉन बेसिकली होता है अर्ली मॉर्निंग। सो वी आवर्स ऑफ द डे मतलब शुरुआत में, दिन के एकदम शुरुआत में मैंने रॉबरी कर दिया, मैंने नहीं की, किसी ने कर दी होगी। सो द रॉबरी वॉज कमिटेड इन द वी आवर्स ऑफ द डे मतलब एट डॉन, एकदम सुबह सुबह यहाँ पे रॉबरी कमिट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू गिव डैश बैड कंपनी। तो क्या करना चाहिए, बैड कंपनी को क्या कर देना चाहिए, ये दैट इज बेसिकली द पॉइंट हियर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ को गिव क्या करते हैं, खराब चीज़ को हम क्या करते हैं, यू गिव अप स्मोकिंग, यू गिव अप ड्रिंकिंग, यू गिव अप गैम्बलिंग, यू गिव अप लेजिंग, कुछ बोल सकता है, वी डोंट नो, राइट। सो गिव अप करते हैं हम कोई भी चीज़ को, गिव अप करते हैं मतलब छोड़ दिया, दैट इज द थिंग। तो बैड कंपनी छोड़ दो, द आंसर हियर इज गिव अप। गिव ऑफ कुछ नहीं होता, गिव अवे इज आई एम गिविंग इट अवे। तो गिव अवे जो करते हैं यूट्यूब चैनल्स वगैरह करते हैं लोग, जो करते हैं दैट इज गिव अवे, वो तो बैड कंपनी को नहीं कर सकते। गिव आउट बैड कंपनी भी कुछ नहीं होता, गिव फॉर भी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आइटैलिसाइज्ड के बारे में हमको बताना है कि भाई क्या इसके सब्सटीट्यूशन हो सकते हैं। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ पोस्टिंग दीज लेटर्स ऑफ माई रिलेटिव्स। प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट दीज लेटर्स ऑफ माई रिलेटिव्स, मेक सेंस। प्लीज रिमाइंड मी टू हैव पोस्टेड, ऐसा कुछ नहीं होता, टू हैव पोस्टेड क्या होता है। प्लीज रिमाइंड मी फॉर पोस्टिंग दिस लेटर्स, रिमाइंड मी फॉर नहीं होता, प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट। तो हम लोग जब भी कोई अपने फोन को ही बोलते हैं कि प्लीज ये करो, तो प्लीज रिमाइंड मी टू डू समथिंग, राइट, तो ये होता है। टू पोस्टिंग नहीं होता, प्लीज रिमाइंड मी टू पोस्ट होगा। सो द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, एंड नो इंप्रूवमेंट तो इसमें बोल नहीं सकते। द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स टू पोस्ट और ऑप्शन ए फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगेन वी हैव टू फिगर आउट कि इसका जो आइटैलिसाइज्ड पार्ट है उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। एन एजुकेटेड वे ऑफ लाइफ, एजुकेटेड मैन्स वे ऑफ लाइफ कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन। अब ये वाला भी शायद गलत हो सकता है, विच इज़ फाइन, ठीक है। कैन बी कॉन्ट्रास्टेड टू, सो इन कॉन्ट्रास्ट टू बोलते हैं, बट किसी भी चीज़ को अगर कॉन्ट्रास्ट करना है तो कॉन्ट्रास्ट किसी के साथ करेंगे। सो कॉन्ट्रास्टेड टू इज नॉट कॉन्ट्रास्ट किसी के साथ, कॉन्ट्रास्ट विथ होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। एन एजुकेटेड मैन्स वे ऑफ लाइफ कैन बी कॉन्ट्रास्टेड विथ, उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर्ड विथ, कंपेयर टू बोल सकते हैं, सॉरी, कॉन्ट्रास्टेड विथ होगा इन दिस पर्टिकुलर केस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट कौन से पार्ट में एरर है, और अगर एरर नहीं है तो वी विल बेसिकली मार्क द ऑप्शन दैट सेज नो एरर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, माई फ्रेंड नोज सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव, बट ही हैज़ अ स्पेशल कमांड ओवर इंग्लिश इन विच ही हैज़ रिटन अ फ्यू बुक्स ऑल्सो। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर गड़बड़ है। सो ऑनेस्टली इफ़ यू जस्ट पुट दिस इन सम सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी वगैरह में डाल दोगे तो दे विल टेल यू दैट दिस इज एन एरनियस सेंटेंस ऑल टुगेदर। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई विल से दैट इवन द लास्ट पार्ट हैज एन एरर। तो अगर डी मार्क किया तो वी विल नॉट फील बैड अबाउट इट। द करेक्ट आंसर हियर इज पार्ट बी, माई फ्रेंड नोज सेवरल इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, ये वाला पार्ट ठीक है। बट ही हैज स्पेशल कमांड, स्पेशल कमांड नहीं होता, ही हैज अ स्पेशल कमांड होता है। सो दिस इज ऑफ कोर्स रॉन्ग, ही हैज अ स्पेशल कमांड ओवर इंग्लिश इन विच ही हैज रिटन, दिस इज फाइन। अ फ्यू बुक्स ऑल्सो, अ फ्यू बुक्स ऑल्सो नहीं होता, इन विच ही हैज ऑल्सो रिटन अ फ्यू बुक्स, ठीक है। मतलब उसने कुछ बुक्स लिखे हैं और इंग्लिश में भी उसने बुक्स लिखे, ये एक मतलब बना। एंड द अदर वे ऑफ सेइंग दिस इज इन विच ही हैज रिटन अ फ्यू बुक्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है बाकी लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेजेस में मैंने फ्यू बुक्स लिखे हैं। अब ऑल्सो बोलने की क्या जरूरत है उसके अंदर, इन विच ही हैज रिटन अ फ्यू बुक्स, दैट इज डन। बट यहाँ पे द करेक्ट आंसर, द ऑफिशियल आंसर अकॉर्डिंग टू सीईटी वाज पार्ट बी और ऑप्शन ए, दैट वाज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट आई थिंक इवन डी वाज नॉट रियली करेक्ट, वो भी गलत आंसर कंसिडर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु टॉक्स कंटिन्यूसली, उसका वन वर्ड बताना है। लॉक्वेशियस, वोरेशियस, इम्पेक्यूनियस, एवेरिशियस एंड रेटिसेंट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, कुछ वर्ड्स ढूंढ के निकालना। लॉक्वेशियस, लॉक्वेशियस मतलब जो बहुत बोलता है, बड़बड़ बड़बड़ करता है, उसको लॉक्वेशियस बोलते हैं। वोरेशियस, वोरेशियस रीडर होता है। वोरेशियस मतलब जिसको बहुत हंग्री है। वोरेशियस कैटरपिलर होता है ना, जो जैसे मलबेरी लीव्स बहुत सारा खाता है, दैट इज वोरेशियस, तो खाने वाला। सो दैट इज नॉट अवर आंसर। इम्पेक्यूनियस क्या होता है, यू टेल मी।
पेक्यूनियस, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. सो ये वाला पार्ट बताना क्या होता है करके, एंड यू विल ऑफ कोर्स फील बेटर अबाउट इट. एवेरिशियस, एवेरिस, AVARICE, ये एक वर्ड होता है, ईविल, राइट, ये एक चीज़ होता है. एवेरिशियस क्या होता है, उसका भी मीनिंग यू कैन लेट मी नो. रेटिसेंट, रेटिसेंट मतलब एकदम डेम्योर, सबड्यूड, बात नहीं करता, जैसे शर्मीले जो होते हैं ना उनको रेटिसेंट बोलते हैं. हेजिटेंट जो होते हैं उसको रेटिसेंट बोलते हैं. अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. अब सब्स्टिट्यूट करना है तो लॉक्वेशियस विल बी दी वन, जहाँ पे कंटिन्यूसली कोई बात किए जा रहा है, बक करता है, ठीक है, दैट इज लॉक्वेशियस. नेक्स्ट देख लेते हैं. I don't know a little about your plan dash, तो fill in the blanks करने हैं. I don't know a little about your plan, तो फिर क्वेश्चन पूछा है, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में नहीं पता. पता है मतलब क्या मुझे पता है, ऐसे, दैट इज व्हाट डाउट इज. सो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, वी बेसिकली लुक एट द वर्ब हियर, आई डोंट नो अ लिटिल अबाउट योर प्लान, और उसको ऑपोजिट करते हैं. आई डोंट नो बोल रहे हैं तो ऑपोजिट होगा डू, एंड आई वापस आएगा. आई डोंट नो अ लिटिल अबाउट योर प्लान, डू आई, तो दैट इज दी पार्ट हियर, ठीक है. विल आई नहीं बोलेंगे, डिड आई नहीं बोलेंगे, वॉज आई तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, इज आई भी नहीं बोल सकते. आई डोंट नो, डू आई, ऐसे, तो मुझे नहीं पता या पता है, ऐसे, तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पे वी हैव टू फिगर आउट विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफस्केट. सो ऑफस्केट का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फिगर आउट. अब ऑफस्केट अगर देखेंगे तो दी होल आइडिया इज, मैंने कोई चीज़ को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इन अ वे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली, या मैंने ब्लाइंड कर दिया कोई चीज़ों से, तो मैं तुमको ठीक से बता नहीं रहा हूँ. तो मैं ऑफस्केट करता हूँ रिकॉर्ड्स को, मैं ऑफस्केट करता हूँ डेटा को, ऐसे में कुछ ना गड़बड़ कर देता हूँ, सो दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको कंफ्यूज कर रहा हूँ. सो कलेक्ट इज नॉट द वन, कैप्चर इज नॉट द वन, कन्फाइन इज नॉट द वन, कंफ्यूज इज द आंसर. ऑफस्केट कर रहा हूँ मैं, कुछ फैक्ट्स को इधर उधर करके तुमको गड़बड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज कंफ्यूजिंग समवन, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट देख लेते हैं. अब यहाँ पे यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज दी वन वर्ड मीनिंग फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड और अ सेंटेंस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक दैट इज संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो. सो ये बहुत बार देखा होगा लव स्टोरीज वगैरह में, पुरानी लव स्टोरीज में देखा होगा दैट कोई तो नीचे खड़े के गाना गा रहा है, कुछ म्यूजिक बजा रहा है, एंड समवन इज स्टैंडिंग इन द बालकनी और समथिंग, ऐसा कुछ देखा होगा. सो देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस, and that word is called serenade. Serenade का मतलब होता है serene is peaceful, and serenade is basically garden के अंदर खड़े के जो गाना गाते हैं उसको exact word उसका serenade होता है. So that is the answer. लिरिक जनरली होता है वर्ड्स, जिस वर्ड में हम गाने में कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसको लिरिक्स बोलते हैं, लिरिक, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो वो ये इसका आंसर नहीं है. सोनेट, सोनेट अगेन इज अ काइंड ऑफ अ पोएम दैट एग्जिस्ट्स. तो क्या होता है सोनेट के अंदर, अगेन लेट मी नो इफ यू फिगर आउट व्हाट सोनेट इज, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ पोएम. प्रिमो, अगेन लेट मी नो व्हाट प्रिमो इज, एंड लिमरिक, लिमरिक अगेन इज अ फन पोएम काइंड ऑफ अ थिंग, सो उसको बोलते हैं लिमरिक. सो सेरेनेड इज एग्जैक्टली द म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सन्स विंडो, वेरी स्पेसिफिक मीनिंग दैट इज देयर. नेक्स्ट देखते हैं पेस्की. अब पेस्की का मीनिंग मुझे पता करना है. अब पेस्की जो होता है ना, तो इफ़ यू हैव प्लेड सम गेम्स यू विल सी दिस स्मॉल क्रीचर्स दैट आर फ्लाइंग अराउंड हियर एंड देयर, और उसे बज कर देते हैं, तुमको बाइट कर सकते हैं. इवन नॉर्मली इफ़ यू आर गोइंग समवेयर, तो इंसेक्ट्स होते हैं जो पेस्की होते हैं. सो पेस्की इंसेक्ट्स तुमको क्या करेंगे, पेस्की इंसेक्ट्स तुमको करेंगे अनॉय. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, दैट इज अनॉइंग. प्लेजेंट नहीं बोल सकते, सडन हो सकता है, शॉकिंग नहीं बोल सकते, सूदिंग तो बिल्कुल नहीं बोल सकते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अनोइंग हियर. अगेन इवन इफ यू डोंट नो व्हाट पेस्की इज, ए एंड ई आर प्लेजेंट एंड सूदिंग, तो सेम ही है ना, तो नहीं बोल सकते. सडन एंड शॉकिंग भी सिमिलर है, तो नहीं बोल सकते. सो बचा मेरे पास अनोइंग. सो ऑप्शन डी इज द आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. रीना डैश अ टेस्ट फॉर पोएट्री इन द कंपनी ऑफ हर कजिन. सो रीना ने कुछ तो एक पोएट्री के अंदर अपना टेस्ट जो था उसको या तो फाइंड किया, डेवलप किया, कुछ तो किया उसके बारे में, ठीक है, बट मतलब डेवलप किया, ग्रो किया. तो कजिन पोएट्री में शायद कुछ करती थी या करता था, एंड देन रीना ऑल्सो थॉट कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए. सो कैसे बोलेंगे, रीना लर्नड अ टेस्ट फॉर पोएट्री नहीं होता. रीना कल्टिवेटेड अ टेस्ट फॉर पोएट्री बोल सकते हैं, फॉस्टर्ड नहीं बोल सकते, इम्बाइब्ड नहीं बोल सकते, मेड अ टेस्ट तो बिल्कुल नहीं बोल सकते. सो कल्टिवेट अ टेस्ट करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ में, ठीक है. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन बी हियर. नेक्स्ट देखते हैं. He was astonished dash the sad news. So sad news पे sad news सुन के वो astonish हो गया, शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, भाई ये क्या हो गया करके. So he was astonished at the sad news. That is the correct usage here. He was astonished with the sad news नहीं बोल सकते, sad news और वो दोनों एक साथ astonished नहीं हुए थे. He was astonished in the sad news तो नहीं बोलते, to the sad news भी नहीं बोलते, from the sad news नहीं, sad news से वो astonish नहीं हुआ, astonished at the sad news. That is the correct usage here. Next question देख लेते हैं. We want to find the best meaning of the given word, deify.
अब डेइफाई के अंदर डेइटी हो सकता है या डाइफिकेशन हो सकता है, राइट। सो क्या होता है डेइफाई? डेइफाई मतलब डेइटी, डेइटी पता होगा, डेइटी मतलब हम किसी भगवान को प्रे करते हैं, दैट इज डेइटी, ठीक है। सो डेइटी मतलब मैं किसी को प्रे कर रहा हूँ या किसी को मैंने एकदम ऐसे उस पेडेस्टल पे रखा है जहाँ पे आई रिवियर, आई वर्शिप समवन, ये होता है। सो द करेक्ट आंसर हियर ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, वर्शिप इज द आंसर हियर। परमिट, सिलेक्ट, रिजेक्ट, डिस्पाइस, इसमें से कोई भी डेइफाई नहीं होता। डेइफाई मतलब मैंने किसी को डेटी बना दिया, दैट इज द लिटरल मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू थ्रो अप द स्पंज, इसका मीनिंग क्या होता है? सो हैव अ लुक एट इट, राइट, एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। सो टू थ्रो अप द स्पंज, इसका क्या मतलब बना? सो बॉक्सिंग कर रहे हो एंड तुम्हारा कोच बाहर खड़ा है, तो स्पंज यूज करते हैं स्वेट वाइप करने के लिए। एंड बहुत ही मैच ऐसा चल रहा है जहाँ पे यू आर मोस्टली गोइंग टू लूज, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मैंने टॉयल फेंक दिया अंदर, बंद करो, मैच बंद कर दो करके, दैट इज थ्रो अप द स्पंज। तो स्पंज मैंने रिंग के अंदर फेंक दिया, दैट बेसिकली मीन्स टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट। तो कॉन्टेस्ट मैंने छोड़ दिया है, आई हैव फोरफिटेड द मैच, दैट इज व्हाट इट मीन्स। सो व्हाइट फ्लैग हो सकता है, थ्रो इन द टॉवल हो सकता है, जो भी है, बट थ्रो अप द स्पंज भी उसको बोल सकते हैं। एंड स्पंज इज टू रिमूव द स्वेट व्हाट वुड हैव बीन एक्यूमुलेटेड व्हेन समवन इज बॉक्सिंग, ठीक है, तो वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, वी हैव टू फिगर आउट द वर्ड दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच बेल्स हैंग, तो बेल कहाँ पे हैंग करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर, ठीक है। अब ये इधर यू नो इट और यू डोंट, दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन यू हैव हियर। सो मिनारेट होता है, मीनार जो बोलते हैं, कुतुब मीनार, सो इट्स बेसिकली अ टॉल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट, तो दैट इज नॉट वेयर बेल्स हैंग। बेलफ्राई, अब पता नहीं होता तो बेलफ्राई शायद मार्क करते, दैट इज ऑल्सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चैपल इज अ प्लेस जहाँ पे पीपल गो टू प्रे, वहाँ पे बेल्स हैंग करेंगे ऐसा बोल नहीं सकते। स्पायर अगेन इज अ प्लेस दैट एग्जिस्ट, सो स्पायर का मतलब आपको बताना व्हाट इट इज। एंड लैंटर्न अगेन वहाँ पे बेल हैंग नहीं करते, लैंटर्न इज अ लैम्प काइंड ऑफ अ थिंग। सो ऑप्शन बी बेलफ्राई इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। And now let's look at the last question of the set that we have here. Open rebellion of soldiers and sailors against lawful authority. तो कुछ rebellion कर दिया soldiers या sailors ने। Sedition होता है if you do something against the government, against some political party, against the state, तो उसको बोलते हैं sedition. Revolt भी होता है मैंने किसी के against कुछ fight कर दिया। म्यूटिनी स्पेसिफिकली फॉर सेलर्स और सोल्जर्स अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, तो वो उनके कुछ अथॉरिटी थी उनके अगेंस्ट उन लोगों ने रिवॉल्ट किया, उसको बोलते हैं म्यूटिनी। सो रिवॉल्ट इज राइट, सेडिशन शायद नहीं बोल सकते, म्यूटिनी बोल सकते हैं, रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, बट म्यूटिनी इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट वी आर लुकिंग एट। सो म्यूटिनी फिट्स बेटर देन द अदर वर्ड्स दैट वी हैव। एनार्की इज जहाँ पे कोई भी तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट को मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं कुछ उसका बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ, आई एम बेसिकली डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, दैट इज एनार्की विच इज केओस जो होता है। जो यू माइट हैव सीन द जोकर, तो वहाँ पे एनार्की केओस ये वाली जो बात हो रही है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस। डू लेट मी नो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड इट beneficial, do put a comment below, it helps us stay motivated to bring more such videos to you. And if you are not subscribed to the channel yet, do subscribe to the channel, make sure that you like this video and share it with your friends as well. Also to reiterate, the CET workshops that were conducted, they are available in a recorded format now. सिर्फ workshops लोगे तो 1999 का पूरा कोर्स पड़ेगा, and if you want workshops and tests, the entire course is going to cost you 2999 rupees. So do have a look at it in case you are still looking for resources to crack the CET, and I'm sure you will benefit from that entire course that we have. ठीक है, I'll see you again in the next video. Till then, keep preparing.